You can become a sports lawyer. You can work with leading sport personalities, cricketers या फिर sport franchises like IPL. Similarly, you can work as an entertainment lawyer representing entertainment industry. You can work with leading actors, production houses and lot of it. लॉ में जुडिशरी और लिटिगेशन के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होते या फिर अवेयरनेस नहीं होती है. That is why this video is very important for you, because इस वीडियो में आपको 7 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा which are out of the league but have lot of money and respect. हम बात करने वाले हैं इन करियर ऑप्शंस की कॉर्पोरेट लॉयर, साइबर लॉयर, एंटरटेनमेंट लॉयर लाइक रिप्रेजेंटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेडिकल लॉयर, स्पोर्ट्स लॉयर, human rights lawyer, intellectual property lawyer. But before we dive into the content and I tell you all the details about these career options, is there anything better than getting a law degree from an institution that provide different specializations? Wondering which school I'm talking about? Well, it's SRM School of Law, which offers courses for BA LLB and BCom LLB. It inherits the reputation and legacy of SRM in addition of having excellent infrastructure and faculty. They have competent and qualified teachers available at all time of the day, giving individual attention. A part of the university has been placed in the highest category A by MHRD of India. It is also accredited by NAC and 4 stars by QS ranking. Last but not least, they believe in a profession-oriented approach and give exposure and practical training from first year itself. This year's law exam will be held on 9th and 20th of June. Good luck to everyone who is taking the exam, and if you are looking for a good law school, definitely check SRM School of Law. So now let's start with our video. My name is Ashish. I am a career coach, and first we are going to talk about how to become a corporate lawyer or corporate lawyer as a career option. So you have seen suits, you have seen all the things in this video, and I'm sure it has definitely inspired you the way they work. But corporate law is more or less similar to what you have seen in suits. First thing is, what are the requirements, and also understand this, that these are the kind of requirements that will be required in most of the career options. So you need a bachelor's degree in law, you need license from bar association for practicing, and you need excellent communication skills. See, all the career options that are out of the league requires not just lot of knowledge but great communication skills and great negotiation skills. So what you will be doing in this as a corporate lawyer, you will be negotiate deals on behalf of the company, evaluate new business partnerships with vendors and subcontractors, represent the company in legal proceedings, protect the company against legal risks and violations, guide management on regulatory and compliance issues to ensure compliance with legal regulation, prepare the appropriate legal documents for trial and court proceedings. So these are all the work that you do. You also design and oversee the company's policy एंड पोजीशन ऑन लीगल मैटर्स. तो ये सारे काम आप करते हो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर. अच्छा, अब ये बात है कि आपको कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट लॉयर जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं. सो यू कैन वर्क विद कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रीज. जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका अपना एक लॉ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट होता है. यू कैन वर्क इन दैट. You can work with legal publishers, you can work with consultancies offering legal support, legal help, newspapers and business magazines. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे दे हैव लॉ, स्कूल ऑफ लॉ, लॉ डिपार्टमेंट्स. यू कैन वर्क एज अ एजुकेटर देयर. यू कैन ऑल्सो वर्क इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. सो ये सारे करियर ऑप्शंस आते हैं आपके पास एज अ कॉर्पोरेट लॉयर. अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल लॉयर के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल फील्ड है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, स्पेशली आफ्टर दिस पैंडेमिक. तो मेडिकल तो जो ग्रो किया है वो किया ही है, बट एज अ लॉयर ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है. ओके, सो मेडिकल लॉयर कंसर्न विद लीगल राइट्स टू पेशेंट एंड मेडिकल प्रोफेशनल. मेडिकल में चाहे आप पेशेंट हो या फिर आप एक हॉस्पिटल हो या फिर फार्मा कंपनीज हो, सबके अपने लीगल राइट्स हैं एंड एवरीवन इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट दैट, राइट. Medical lawyer practice law as it relates to healthcare policy, legislation, advocacy, reform and related subjects. यहाँ पे होता क्या है, important है कि
कोई नेग्लिगेशन हुआ है उसको अवॉइड करना, या फिर अगर वो हो चुका है तो उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। अगर कोई वायलेशन ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी हुई है उसको कैसे हैंडल करना। जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत सारे केस आते हैं, मारपीट के केस हैं, उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फार्मा कंपनी अगर कोई नया ड्रग लॉन्च कर रही है उसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। किसी फार्मा कंपनी को से कोई नई यूनिट स्टार्ट करनी है, या फिर किसी फार्मा कंपनी के ऊपर कोई किसी ने केस कर दिया, हॉस्पिटल के ऊपर कोई केस कर दिया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि ये सारे नीश प्रोफाइल्स हैं। एक बार आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लिया, देन देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ इन दीज करियर ऑप्शंस। आप वर्क कैसे करते हो? यू कैन स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, या फिर यू कैन वर्क विद अ लॉ फर्म, राइट। यू कैन वर्क विद फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर प्राइवेट सेक्टर्स। बहुत सारे वर्क करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर्ट्स लॉयर्स, राइट। सो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बट अब हो क्या रहा है कि जैसे आईपीएल आया, बहुत सारे कबड्डी में कबड्डी लीग आ गया, बहुत सारे नए स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं जस्ट लाइक वेस्ट। तो जैसे जैसे नए बिजनेस एवेन्यूज आते हैं वैसे वैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, एंड दिस इज क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल्स इन लॉ ऑल्सो। ओके, सो स्पोर्ट्स लॉयर ऑल्सो नोन एज स्पोर्ट्स लॉ अटॉर्नी, एक लीगल प्रोफेशनल है जो एथलीट्स को हेल्प कर सकता है। इंडस्ट्री बोर्ड्स, टीम्स, लीग्स, अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ आप काम कर सकते हो इन लीगल मैटर्स, राइट। और जितने भी करियर ऑप्शंस, इनमें एक चीज़ है कि यू कैन वर्क मोस्टली विद लॉ फर्म्स, या तो आपकी अपनी लॉ फर्म आप स्टार्ट करते हो व्हेन यू गेट द एक्सपीरियंस, और यू स्टार्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ ज्वाइनिंग अ लॉ फर्म, राइट। ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पर्सनल इंजरी, क्रिमिनल डिफेंस, टॉर्ट्स, बिजनेस लॉ, इंश्योरेंस लॉ, लेबर लॉ। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। साइबर लॉ, इंटरनेट स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो जो इंटरनेट की ग्रोथ है वो तो बहुत ही है ही, बट इसमें एक चीज़ और भी है, वो है चैलेंजेस, फ्रॉड्स। आप डेली देखते हो बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, फ्रॉडुलेंट केसेस हैं, या वायरस अटैक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट के इश्यूज हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो है साइबर लॉ, प्रोटेक्टिंग पीपल थ्रू लॉ, राइट। जैसे अभी आपने एक कंट्रोवर्सी देखा होगा, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक अगर फेक न्यूज़ चल रही है तो मुझे एक ग्रीवेंस ऑफिसर चाहिए जो उसे हैंडल करे। अगर यहाँ की प्रॉब्लम है उसके लिए यूएस जाके कंप्लेंट थोड़ी करेगा कोई इंसान, राइट। तो ग्रीवेंस ऑफिसर, तो वहाँ पे लीगल पर्सपेक्टिव है। आपने एक चीज़ और देखी कि व्हाट्सएप ने केस कर दिया गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर। तो ये सारे लीगल मैटर्स हैं जहाँ पे यू कुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट, राइट। So cyber law is also known as digital law and internet law. Cyber law is the term which deals with the issue related to क्या क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे अभी 5G लॉन्च हो रहा है तो उसके क्या प्रॉज हैं, क्या कौन से, किसने किस पे केस किया, कैसे लॉन्च करना है, क्या उसके लीगल मैटर्स हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह की साइबर लॉ में भी आप काम कर सकते हो। जो मेजर एरियाज हैं जहां आप काम कर सकते हो वो है कि साइबर फ्रॉड, कॉपीराइट, डिफेमेशन, हैरेसमेंट एंड स्टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रेड सीक्रेट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें यू कैन वर्क। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट लॉयर। तो एंटरटेनमेंट लॉयर का मतलब ये नहीं कि आपको एंटरटेनमेंट करना है किसी का। एंटरटेनमेंट लॉयर का मतलब है यू आर देयर टू रिप्रेजेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जनरली लॉ फर्म्स होती हैं जहां पे you are part of it and you are working in it, right? So there are a lot of law firms who are already working in this, especially in Mumbai. So you can see you represent films and televisions, music, comedy, print and electronic media, actors, producers, individuals working in this industry, right? Association है, Cine Workers Association है, या फिर Writers Association है, इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, सबके अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, मूवी में काम कर रहे हो, one thing that it start with is with a legal contract. So there's lot of work and scope in this field. Okay, so आप negotiation facilitate कर सकते हो as a entertainment lawyer. आप जो है वो क्लाइंट को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स से कनेक्ट कर सकते हो। You can protect the intellectual property. आर्टिस्ट जो काम करते हैं they are their properties, right? So you can protect them, help
इन दैट, जैसे आजकल पायरेसी चल रही है, जैसे आपने देखा मूवी रिलीज हो गई, पायरेटेड आ गई, तो वहाँ पे एक लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। अगर आपने कनेक्ट कर लिया कि किसने वो पायरेट किया है, किसने उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करवाया, सो दे आर लीगल प्रोसीडिंग्स जहाँ पे लॉ फर्म विल कम इन पिक्चर। ओवरसीइंग यूनियंस हैं, गिल्ड मेंबरशिप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दिस फील्ड। नेक्स्ट आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, राइट। So intellectual property lawyer deals with legal rights to creative works and inventions. So what are intellectual properties? They are either the inventions या फिर जो creative work हैं लोगों के, right? They are intellectual property. So intellectual property lawyer assist businesses with acquiring, protecting and using IP. Like क्या क्या patents हो सकता है, brand, copyright, designs, databases, trademark law, licensing, फ्रेंचाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेड सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब आता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ओके, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो? यू कैन वर्क विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, यू कैन वर्क विद प्राइवेट लॉ फर्म्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेसर एंड लेक्चर इन वेरियस रिनाउंड यूनिवर्सिटीज। ये सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन राइट्स लॉयर। सो अगर आप अच्छा काम करने के साथ साथ सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड हो, लोगों को हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो, देन दिस इज वेयर यू कैन वर्क इन। ओके, सो एज अ ह्यूमन राइट्स आर हमारे जो यूनिवर्सल और फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे राइट टू हेल्दी फूड, राइट टू क्लीन वाटर, राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, बट बहुत सारे लोग लकी हैं, दे हैव देम, बहुत सारे लोगों को नहीं है। दैट इज वेयर फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन राइट्स लॉयर कम्स इन पिक्चर टू हेल्प and support people and make sure that they get their human rights. Okay, so human rights lawyers advocate on behalf of victims of abuse, persecution, civil rights violation and human rights violation. अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो है ह्यूमन राइट्स एज अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, दैट यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। यू कैन वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल NGOs, अब बहुत सारे हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन इन दिस फील्ड, राइट। अब कहाँ कहाँ काम कर सकते हो? जैसे मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, you can become an educator also, teach in a university, write about it. Okay, you can also work as a journalist, work in journalism, so using that knowledge to make people aware on these subjects, right? वर्किंग विद लोकल बॉडीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, स्टेट के अपने बहुत सारे, हर स्टेट में अपने डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हो। मे बी यू वुड वांट टू हेल्प ओल्ड एज पीपल, राइट, टू गेट देयर राइट्स, लिविंग अ बेटर लाइफ। सो ऑल ऑफ दिस is what you have as a human rights lawyer. So with that we have come to the end of this video, right? इस वीडियो में मैंने आपको सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जो हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंड। यू हैव अ लॉट मोर करियर ऑप्शंस इन लॉ। लॉ एक बहुत बड़ा फील्ड है और यहाँ पे यू हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज ओनली if you are focused, have clarity in your mind and understand what you want to get. And most importantly, it's all about understanding your path, practice and working hard to achieve what you want to achieve. So thank you so much for watching this video. I hope काफ़ी सारी knowledge और information आपको मिली होगी law के बारे में. Stay tuned on this channel for more videos like this. I'll keep on coming and sharing some good knowledge as always. Thank you so much for watching this video.